we have seen a detailed account of translation in our previous lecture. हमने देखा किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है और अल्टीमेटली लास्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ कितनी एक्यूरेटली और एफिशिएंसी से एंड नंबर ऑफ एंजाइम्स and number of factors are involved in that translation process. So we revise again with the help of NCERT language. जैसे कि NCERT के अंदर जो भी translation की language है थोड़ी सी complicated है या confusing है, तो एक बार फिर से उसकी revision कर लेते हैं translation की with the help of NCERT. तो NCERT में सबसे पहले again they have given the translation process. तो हमें मालूम ही है it is a formation of protein or formation of polypeptide chain, of polypeptide by taking the sequence of amino acids, and these amino acids polypeptide with the sequence of amino acid, and these amino acids they are directed by the messenger RNA, and messenger RNA is also directed by the DNA. DNA पहले ट्रांसक्रिप्शन बनाया and then transcription से translation was completed, that is formation of protein, और protein is a long chain of polypeptide. पॉलीपेप्टाइड क्यों कहते हैं, बीच में पेप्टाइड बॉन्डिंग आती है, वो पेप्टाइड बॉन्डिंग भी हम देखेंगे क्या होती है. और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज मेंशन इन एनसीईआरटी, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, दैट वी आल्सो डिड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. कैसे चार्जिंग हुई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल अमीनो एसिड वाज एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ जीटीपी, एटीपी के साथ एक्टिवेट हुआ, एंड देन एंजाइम कॉम्प्लेक्स वाज आल्सो फॉर्म्ड, एंड देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर आरएनए, दिस activated amino acid was attached with the transfer RNA, and this was called the charging of transfer RNA or amino acylation of transfer RNA. So this amino acylation we have seen occurs with the help of energy and with the help of enzyme complex. तो वो भी हम पढ़ चुके हैं already. We have studied in detail with the help of reactions in our lecture. And then came the role of energy. Although it is a very complex process, long and time consuming and energy consuming process. That is why lots of energy in the form of ATP and GTP with the elongation factors, initiation factors. बहुत सारे proteins हमने देखे थे, and various enzymes such as synthetase and transferase were involved in that process. Synthetase and transferase. Although name has not been mentioned, name of the enzyme is not mentioned in NCERT, but I told you there are 2 or 3 enzymes जहाँ पे भी वो आए थे, that we have already seen कि किस तरह से synthetase enzyme आया और कहाँ पर synthetase starting में आया, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए में, अमीनो एसाइलेशन में, फिर पेप्टाइड बोर्ड फॉर्मेशन में ट्रांसफरेज एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज केम. एंड देन सेलुलर फैक्ट्री के बारे में अगेन, ribosome is having combination of ribosomal RNA plus 80 different kind of proteins according to NCERT, and this ribosomal RNA are again the product of the transcription से बने number of subunits are formed, and they are different in eukaryotic ribosome units और prokaryotic units में different थे, वो सब हम देख चुके हैं. और इसमें रिबोसोमल आरएनए जो भी whatever we are studying is made up of 2 subunits, large subunit and small, 50s subunit and 30s in case of prokaryotes, that we have already studied. Large is having P and A site, and it is meant for the attachment of transfer RNA, and large subunit पे सबसे पहले मैसेंजर RNA ज्वाइन करता है. जब वैसे ही मैसेंजर RNA ज्वाइन करता है तो स्मॉल एंड लार्ज दे ज्वाइन विद ईच अदर. इनिशियली दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर. जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, और वेन एवर मैसेंजर RNA फाइंड्स इट्स सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस जब भी स्मॉल यूनिट पर देखता है और अटैच करता है अपने आप को विद इस कोडोन के अकॉर्डिंगली, तो लार्ज सब यूनिट यहाँ अटैच हो जाती है, सो दैट प्रोटीन सिंथेसिस कैन बी स्टार्टेड. अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? इट इज़ अ यूनिट जस्ट बिफोर द एट द 5' एंड, just before the after the we can say 5' end पे, between the initiating codon and terminating codon at 3' end. termination codon जो 3 होते हैं, termination codon at 3' end.
ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांसक्रिप्शनल और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है कैरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोडोन ट्रिपलेट्स, उसको हम कह देते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो इसके बारे में बताया गया, इनिशिएशन होती है AUG से और टर्मिनेशन के लिए 3 कोडोन्स आर देयर, UAA, UGA एंड UAG that we have already mentioned with their specific other names also. तो इनिशिएटिंग कोडोन स्टार्टिंग बिटवीन द, स्टार्ट कहाँ से होगी 5' एंड से अप टू द टर्मिनेशन एंड तक, उनके बीच में जो भी कोडोन होंगे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल होंगे, तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एंड देन देयर इज ए रोल ऑफ अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन आर प्रेजेंट बिफोर द अनट्रांसलेटेड region are present before the 5' end, before the 5' end starting से पहले, and after the 3' end, after the 3' end। कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं नाइट्रोजन बेसिस के जो पार्टिसिपेट नहीं करते प्रोटीन सिंथेसिस में, बट दे स्टेबलाइज द ट्रांसलेशन प्रोसेस नीडेड फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन synthesis, but they are not participating, non-participating. So these are also specific, they have been mentioned in our NCERT। जिस तरह से ये मैंने आपको हेडिंग बताया ना, उसके अकॉर्डिंगली ही मेंशन किया गया है। अब आती है मैकेनिज्म में, अगेन दे हैव given the role of AUG carrying the methionine, it is coming at the which site, methionine, and it comes at the P site of the large subunit। यहाँ पे आता है, यहाँ मैंने अभी शो नहीं किया बिकॉज द जो डायग्राम आपकी NCERT में शो किया गया है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली मैंने बनाया है, जिसके अकॉर्डिंगली ट्रांसलेशन हैज़ बीन प्रोग्रेस्ड अप टू सर्टन एक्सटेंट की स्टार्ट हो चुका है। AUG था वो स्टार्टिंग में सबसे पहले, और कुछ बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रोटीन्स बन चुके हैं और अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्डिंग की हेल्प से ज्वाइन हो चुकी हैं। ये इस तरह से डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। तो इनिशिएशन के लिए मिथोइनिन एंड देन इलोंगेशन, ठीक है। तो इलोंगेशन के लिए व्हाट इज, देयर इज ए नीड ऑफ ट्रांसफरेज एंजाइम आता है और GTP एनर्जी फैक्टर, एंड व्हाट हैपन्स एवरी टाइम देयर इज ए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे ही ट्रांसफर RNA यहाँ प्रीवियस वाला होता है P साइड पे और A साइड पे नया आता है, जैसे कि ये बताया A साइड पे नया आएगा, P साइट वाला जो अमीनो एसिड होता है वो इस साइट के ये अमीनो एसिड के साथ ज्वाइन होने जाता है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्डिंग। वो पेप्टाइड बॉन्डिंग कौन सी होती है, CONH बॉन्डिंग। किस तरह से इस वाले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एंड और इसका अमीनो एंड ज्वाइन करते हैं, वो भी हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि किस तरह से ये होता है। तो जब वो ज्वाइन करते हैं, ये वाला अमीनो एसिड जिसके ऊपर बहुत सारी चेन अमीनो एसिड की लगी हुई है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बताया हुआ है, जैसे ये इसके साथ ज्वाइन करेगा यानी कि ये इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा अमीनो एसिड, और ये वाली साइट, ये वाला ट्रांसफर RNA फ्री हो जाएगा एंड इट विल गो टू द साइटोप्लाज्मिक पूल, साइटोसोल में फिर से चला जाएगा टू स्टार्ट विद द अदर प्रोसेस। अब ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ आ जाएगा तो व्हाट विल हैपन, दिस ट्रांसफर RNA विल बी शिफ्टिंग टू दिस साइड, इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा एंड द रिबोसोम विल मूव अलोंग कोडोन टू कोडोन, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड द एंजाइम इज ट्रांसलोकेज। ये मैंने आपको पहले बता दिया, उसी मैकेनिज्म को इस डायग्राम की हेल्प से, जो मैंने आपको 4 डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया था ना, 4 या 5, उसी को ही ब्रीफ किया गया है इसके दौरान कि किस तरह से प्रीवियस वाला अमीनो एसिड उसका एसिडिक ग्रुप और नए वाले के अमीनो ग्रुप से CONH बॉन्डिंग से और पेप्टाइड बॉन्डिंग से ज्वाइन करता है, और ये वाला ट्रांसफर RNA इट विल मूव, इट विल, जैसे ही रिबोसोम आगे जाएगा तो ये ट्रांसफर RNA विल कम टू दी, किस साइड पे आ जाएगा, P साइड पे, और A साइड आगे मूव कर जाएगी टू रीड विद द न्यू कोडोन। अब जैसे ही आगे जाएगा ना तो इस साइड पे नया कोडोन आ जाएगा, इस वाली A साइड पे नया कोडोन आएगा, तो मैसेंजर RNA को रीड, इस कोडोन को रीड करने के लिए ट्रांसफर RNA का एंटी कोडोन विल बी देयर एंड दे विल ज्वाइन एट द ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रूल, ज्वाइन करेंगे और उसको रीड करने के बाद ही वॉट एवर अमीनो एसिड हैज़ बीन कैरीड आउट, जो भी अमीनो एसिड लाया है उसके अकॉर्डिंगली, कोडोन के अकॉर्डिंगली इट विल बी अटैच टू दिस साइड। जैसे ही यहाँ अटैच होगा द प्रोसेस विल गो ऑन अनटिल और अप टिल स्टॉप कोडोन कम्स। स्टॉप कोडोन जैसे ही आएगा तो टर्मिनेशन विल बी देयर,
or polypeptide chain will be fall off from the transfer RNA. Transfer RNA move away, it will not recognize any another codon after the stop codon. Stop codon के बाद फिर कोई भी codon को पढ़ेगा नहीं. तो ट्रांसलोकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, रिबोसोम मूव फ्रॉम codon to codon to read new codon along with messenger RNA, along messenger RNA, and this is called the ट्रांसलोकेशन एंड द एंजाइम इज ट्रांसलोकेस. तो इस तरह से एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस जो भी आपका एनसीईआरटी में दिया गया है उसको कंप्लीट करके बताया गया है. ये अगर मैं आपको स्टार्टिंग में वैसे बिल्कुल एक्सप्लेन करके ना बताती तो हो सकता था ये आपको एकदम से क्लियरली ब्रीफ में नहीं समझ आता. तो आई थिंक अब तो आपको एकदम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा किस तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है और कैसे टर्मिनेशन होता है. टर्मिनेशन के बाद यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, रिलीज फैक्टर आ जाएंगे, रिबोसोम्स यूनिट्स दे विल गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. अब हम आते हैं इस पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे है. जैसे दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए विच इज प्रेजेंट एंड पी साइट पे है, और सेकंड यहाँ पे. ये बात हमने माइंड में रखनी है कि एवरी टाइम नया अमीनो एसिड यहाँ से आता है एक्सेप्ट फर्स्ट पॉइंट. जब AUG स्टार्ट हुआ था ना, स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी पी पॉइंट से. उसके बाद जितने भी अमीनो एसिड होंगे वो यहाँ आएंगे, वो यहाँ पे आएंगे, और फिर ये वाला अमीनो एसिड, इस साइट वाला अमीनो एसिड उनको कैप्चर करने के लिए जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जाएगा, और यहाँ से ट्रांसफर आ रहे हैं निकलते चले जाएंगे. यहाँ आएंगे, यहाँ से निकलते चले जाएंगे, ठीक है, और बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती चली जाएगी. तो ये हमने माइंड में रखना है. एमिनो एसिड एक्सेप्टिंग साइट कौन सी है? ए वाली साइट. तो जैसे कि ये इस पे भी नया एक अमीनो एसिड आ चुका है, यहाँ पहले से ही जुड़ा हुआ था प्रीवियस वाले ट्रांसफर आरएनए के साथ. तो जैसे ये जुड़ा हुआ था, इसका CCA एंड था ना, 3' एंड का CCA एंड के साथ एक OH ग्रुप था. उस OH ग्रुप के साथ इस अमीनो एसिड का COOH ग्रुप दे विल बी ज्वाइनिंग. वो ज्वाइन हुए हैं बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है. उस वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब जो ज्वाइन हुए हैं तो ये कंडीशन आ जाती है ना, COO ऐसा ही बनेगा, क्योंकि एक OH ग्रुप तो एक H CCA एंड का और इसका O, वो क्या कहते हैं, दे हैव अंडरगोन डिहाइड्रोलेशन. डिहाइड्रोलेशन प्रोसेस, OH इधर से और H इधर से निकल गया, ठीक है. तो अब यहाँ से तो जब ज्वाइनिंग हुआ है तब एसिडिक ग्रुप ज्वाइन हुआ है, लेकिन जैसे ही नया अमीनो एसिड आया तो इसकी यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगी, तो एसिडिक ग्रुप फ्री हो जाएगा, और इसका एसिडिक ग्रुप और इसका अमीनो ग्रुप दे विल ज्वाइन कर जाएंगे, एंड इस तरह से नया पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बन जाएगा. यानी कि ये अमीनो एसिड अब यहाँ आ गया बाय पेप्टाइड बॉन्डिंग. जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, एक बार यहाँ से मैं आपको स्ट्रेट चेन की फॉर्म में बताती हूँ. सपोज दिस इज R3 अमीनो एसिड एंड दिस इज H and this is NH2 and this is COOH ग्रुप एक अमीनो एसिड का. दूसरे अमीनो एसिड का हम किस तरह से लेंगे, CHNH. I mean to say this is amino group, this is COOH group and H and then R4. R3 and R4 चेन वेरी करती हैं अमीनो एसिड की. 3 तो सेम होते हैं ग्रुप, ठीक है. एक R1 2 3 ये तो सेम होते हैं ना अमीनो एसिड में. जब ये ज्वाइन करेंगे, वेरिएशन किसके कारण आती है, एल्काइल चेन के कारण, R3 ग्रुप R4, जिसके कारण ये वेरिएशन आ रही है अमीनो एसिड्स में. यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, तो ये लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज देयर, ठीक है. इसको मैं रब कर देती हूँ, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया. अब इनमें ज्वाइनिंग होगी CONH एंड दिस इज ए पेप्टाइड बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है. तो ये बायोमॉलिक्यूल्स वाले 11th के चैप्टर में ये फिर से करवाया जाएगा, ठीक है. तो आपने किया भी होगा. तो इस तरह से ये चेन बनती चली जाती है. CONH नया आता जाएगा, नए वाले का अमीनो एसिड एंड पीछे वाले ट्रांसफर आरएनए का अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एसिडिक ग्रुप ज्वाइन करेंगे. तो एवरी टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड किसका एसिडिक ग्रुप होता है और किसका एमिनो ग्रुप होता है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और पेप्टाइड बॉन्डिंग कौन सी है, CONH बॉन्डिंग इज देयर. तो लॉन्ग चेन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज देयर एवरी टाइम. दिस गोज ऑन number of times and a long chain of polypeptide is formed by the and this process is translation process. In this manner the protein is formed and ultimately the goal of our life is formation of protein. Clear? So this is regarding translation process. Now we start with the another process.